Hello friends, myself Dr. Sonali and welcome to my channel called Med Recall. So let's learn about liver today. Okay. So before it, what is our today's quote? It is Yat Bhavo Tat Bhavati. It means you become what you believe. So believe that you can do it and you will. So let's move forward. Liver. This is the whole liver and it is composed of number of hepatic lobules. These are hepatic lobules which are arranged in hexagonal pattern. Every single hepatic lobule, if we zoom out, you can see there is a central vein at the center, and at the periphery there is a portal triad consists of 1.1 to 2.5 millimeter. It means single hepatic lobules is 1 to 2.5 millimeter only. Okay, and this hepatic lobule, if you are taking the cross section of this hepatic lobule, you can see there is central vein, then sinusoids. These are sinusoids, pinkish, and there are Kupffer cells present in the sinusoids, these Kupffer cells, and there are interlobular hepatic artery, interlobular hepatic vein, and interlobular bile duct. So this hepatic artery, hepatic vein, and bile duct, they form portal triad. Okay, it is located periphery to the hepatic lobule. So ये है portal triad. These cells are nothing but hepatocytes. Okay, these are hepatocytes which are lined along the hepatic sinusoids. And what is the function of hepatocytes? It forms bile. Liver has dual blood supply. It means two types of supply. Okay, one from hepatic artery which carries oxygenated blood, and the other one is portal vein. It carries nutrients to the liver. Okay, portal triad is consist of hepatic artery, portal vein, and bile duct. Central vein मतलब ये जो बीच वाला होता है, it receives nutrients from portal vein. तो portal vein will drain into central vein. Okay, if we want to know the circulation of nutrients along this pathway of intestine to liver, you can see first when we eat something, then the food comes along the intestine, along the esophagus. The food comes along the esophagus and then into stomach and then intestine. Okay, so the food from intestine all will be absorbed through these veins, that is portal veins, and they go to through the portal vein, it will reach the hepatocytes. Okay, hepatocytes which are part of portal system, that is which is part of this thing. Hepatocytes are part of hepatic lobules now, and these hepatocytes, from these hepatocytes all these nutrients will get absorbed and then bile will be formed. Okay, and other thing will be secreted into the central vein. सेंट्रल वेन में चला जाएगा, एंड देन सेंट्रल वेन, ईच सेंट्रल वेन कैरी द ब्लड टू दी हिपैटिक वेन. ओके, पूरा सेंट्रल वेन सारे कैरी करके हिपैटिक वेन को देंगे, एंड दिस हिपैटिक वेन विल गिव इट टू इन्फीरियर वीना कावा. ओके, इन्फीरियर वीना कावा को देगा. फिर इन्फीरियर वीना कावा इज अ पार्ट ऑफ हार्ट ना, सो इट विल गिव टू हार्ट, एंड देन फ्रॉम हार्ट it will go to again lungs and then go to systemic circulation. Okay, so let's see some deeper aspect of this lobule. देखो hepatic sinusoid, so this is hepatic sinusoid. If we are taking close to this, the hepatic sinusoid, this is red colored portion here, it is lined by hepatocytes. Then these are hepatocytes. Okay, this brush border thing are nothing but hepatocytes, and this is sinusoid, space of Dissay, and this remaining space जो है it is called as space of Dissay. And this is vessels. This is red colored is blood vessel, and it is lining of endothelium is the lining. These hepatic stem cells, this green colored hepatic stem cells are located in space of Dissay. Space of Dissay किस में होता है? साइनोसाइड, साइनोसाइडल स्पेस में, जहाँ पे पेरेनकाइमा एंड लूमेन जो है उसके बीच कोई गैप होता है, उस गैप में हिपैटोसाइट्स के स्टेम सेल्स होते हैं. ओके, एंड देन कफर सेल्स इज इंपॉर्टेंट. दिस प्रेजेंट विद इन द साइनोसाइड. तो ये जो साइनोसाइड है इसके बीच में कफर सेल्स हैं. दे आर मोनोसाइट, फैगोसाइटिक, सुडोपोडिया, एड्स इन कैप्चरिंग एंटीजेंस. सो मैक्रोफाज जैसा ही काम करता है. कफर सेल्स आर नथिंग बट हेपैटिक मैक्रोफाजेस. ओके,
These are present in sinusoids. And then there is stellate cells of ito. These are also present in space of Disse. So this stellate cells of ito जिसका function होता है, it helps in absorption of vitamin A and D. Okay, it helps in absorption of vitamin A and D. Then fenestrated होता है this sinusoid. It is non-continuous endothelium, helps in transfer of contents into पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस ऑफ डिस्से. तो यहाँ से न्यूट्रिएंट जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस ऑफ डिस्से में. दैट्स वाई आइटो सेल्स क्या करते हैं, विटामिन ए एंड डी को एब्सॉर्ब करते हैं. नाउ लेट्स क्लैरिफाई सम कंसेप्ट्स विच आर अबाउट पोर्टल ट्रायड, हिपैटिक लोब्यूल एंड हिपैटिक एसिनस. ओके, 3 चीज़ें हैं जो कि रिलेटेड है विथ हिपैटिक लोब्यूल ओनली, बट दे आर डिफरेंट, दे कंटेन सम डिफरेंट थिंग्स. तो देखो पोर्टल ट्रायड सबसे पहले है, सिंपल है. ट्रायड मीन्स पोर्टल ट्रायड मीन्स 3 चीज़ें. सो दे आर लोकेटेड पेरीफेरी. ये जो है हेक्सागोनल, दिट इज़ हेपैटिक लोब्यूल. तो हर हेक्सागोन में कितने होते हैं साइड्स, 6 साइड्स होते हैं. इट मीन्स 6 कॉर्नर में 6 पोर्टल ट्रायड होंगे ईच पोर्टल लोब्यूल के पास. ओके, तो ईच पोर्टल ट्रायड इज कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. सेंटर में तो हिपैटिक वेन होता है हर लोब्यूल के, बट ट्रायड में सेंट्रल वेन इज नॉट कंसिस्टिंग. ओके, ट्रायड में सेंट्रल वेन नहीं आता है. ट्रायड में सिर्फ हिपैटिक आर्टरी आएगी, हिपैटिक वेन एंड बाइल डक्ट आएगा. ओके, पोर्टल ट्रायड हो गया. उसके बाद देखो व्हाट इज पोर्टल लोब्यूल. पोर्टल ट्रायड इज डिफरेंट एंड पोर्टल लोब्यूल इज डिफरेंट. ओके, एंड हिपैटिक लोब्यूल इज डिफरेंट. हिपैटिक लोब्यूल वॉज दिस हेक्सागोनल थिंग. ओके, एंड पोर्टल लोब्यूल क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन बाइल ड्रेनेज. तो पोर्टल लोब्यूल किसके अकॉर्डिंग है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू बाइल ड्रेनेज. ये ट्रायंगुलर होता है ऐसे, एंड इट कनेक्ट्स 3 सेंट्रल वेन्स. तो देखो यहाँ पे 3 हिपैटिक लोब्यूल्स है, ये सारे 3 हिपैटिक लोब्यूल्स हैं. इनके 3 सेंट्रल वेन्स जो है ये वाले, इनको कनेक्ट करके एक बनता है पोर्टल लोब्यूल. ओके, पोर्टल ट्रायड इसके सेंटर में होता है. ओके, देखा यहाँ पे एक जो 3 चीज़ें दिख रही है, तो ये पोर्टल ट्रायड है. पोर्टल ट्रायड इज एट द सेंटर ऑफ पोर्टल लोब्यूल. समझे, पोर्टल लोब्यूल बनता है 3 सेंट्रल वेन्स को कनेक्ट करके, एंड पोर्टल ट्रायड उसके सेंटर में होता है. ओके, चलो उसके बाद देखते हैं हिपैटिक लोब्यूल. हिपैटिक लोब्यूल का देखा हमने, ये तो होता है हिपैटिक लोब्यूल जो कि हेक्सागोनल होता है, उसके सेंटर में सेंट्रल वेन होता है, एंड पेरीफेरी में हिपैटिक ट्रायड होता है. ओके, समझा. देन कम टू दिस थिंग, हिपैटिक एसिनस. हिपैटिक एसिनस क्या चीज़ होती है, इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड कंसेप्ट. तो हिपैटिक जोन्स, हिपैटिक एसिनस मतलब क्या, ब्लड कैरीड बाय ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन. ओके, एट साइड सेंट्रल वेन ऑन वन साइड. तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल वन दोनों तरफ से, देखो हम अगर इतना रिलेशन देख रहे हैं, 2 हिपैटिक लोब्यूल्स के बीच का रिलेशन देख रहे हैं हिपैटिक एसिनस में. तो यहाँ पे क्या होगा, 2 सेंट्रल वेन्स हैं, एंड देन एट द साइड्स, साइड में क्या होगा, 2 साइड में 2 सेंट्रल वेन्स हैं ऑन ईच साइड, एंड पोर्टल ट्रायड ऑन अदर साइड. और यहाँ पर भी 2 पोर्टल ट्रायड्स हैं, है ना. ये डायगोनली प्रेजेंट है. ओके, ये डायगोनली प्रेजेंट है 2 पोर्टल ट्रायड्स. एंड इट टेल्स अबाउट जोन्स ऑफ इश्चीमिया. तो ये क्या बताता है, तो इट टेल्स अबाउट जोन्स ऑफ इश्चीमिया और टॉक्सिक इंजरी. तो हेपैटिक एसिनस विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट जोन ऑफ इश्चीमिया और टॉक्सिक इंजरी. तो यहाँ पे ऐसे याद रखना है कि हिपैटिक एसिनस मीन्स 2 पड़ोसी हैं, 2 नेबर्स हैं, और उनके बीच में हमेशा झगड़ा चलते रहता है. इनका डोर इधर है, इनका डोर इधर है, और इनके आजू बाजू 2 अदर पड़ोसी हैं, और इनके बीच में जो भी झगड़ा होता है, मतलब जो भी टॉक्सिसिटी है, उसको नापने के लिए ये हिपैटिक एसिनस के कंसेप्ट क्रिएट की गई है. ओके, सो इट इज़ हेल्पफुल अबाउट जोन्स ऑफ इश्चीमिया और हिपैटिक इंजरी. तो इसमें एमसीक्यू पॉइंट क्या आएगा, अभी जोन्स होते हैं इसमें, तो 3 जोन्स होंगे, जोन 1, 2, 3. 1 शुरू होता है बाउंड्री से. ओके, मतलब जो भी पेरीफेरी टू इनवर्ड, बाहर से अंदर आ रहे हो ना, इसलिए सेंट्रल वेन जो होता है सेंटर में होता है. तो कभी भी बाहर से अंदर आ रहे हो, इसलिए जो सेंट्रल वेन के पास होगा वो जोन नंबर 3 होगा, और जो भी बाहर होगा वो जोन नंबर 1 होगा. 1, 2, 3. ओके, मतलब अगर ये सेंट्रल वेन है
और मुझे बाहर, ये अगर मेरा घर है और मुझे अंदर जाना है तो मैं यहाँ पे 1 2 3 स्टेप्स लेके अंदर जा रही हूँ. तो इट इज़ 1 फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एंड आफ्टर दैट आई कुड एंटर इन टू द हाउस. ओके, इसका मतलब जोन 1 होता है सबसे बाहर वाला, इसलिए हाईली ऑक्सीजनेटेड है एंड मोर अफेक्टेड बाय टॉक्सिन्स. याद रखना यहाँ पे जिसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अफेक्टेड है. उसके बाद जोन 2 मिडिल मैन हो जाएगा, मतलब लेस ऑक्सीजनेटेड एंड लेस अफेक्टेड बाय टॉक्सिन्स, इसका कुछ ज़्यादा नहीं असर पड़ता. 3 जो है इट इज़ लीस्ट ऑक्सीजनेटेड एंड लीस्ट अफेक्टेड बाय टॉक्सिन्स. ओके, याद रखना. जोन 3 जो है वो एकदम इनवर्ड है, जोन सेंट्रल वेन के पास. इसमें ये सबसे कम ऑक्सीजन होता है जोन 3 के पास, और इसीलिए सबसे कम अफेक्टेड है बाय टॉक्सिन्स. ओके, यू कैन रिमेंबर दिस, लाइक समझो हाईली ऑक्सीजनेटेड जो होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं बुरे लोगों से, है ना. एंड उल्टा होता है, जो कम ऑक्सीजनेटेड होते हैं मतलब जो बुरे लोग होते हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई कितना भी बुरा हो, है ना. ऐसे याद रखना. सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि एसिनस कंसेप्ट दो लोब्यूल्स के बीच में है, एंड वी आर डिवाइडिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स. ओके, जोन्स ऑफ इस्चीमिया और टॉक्सिक इंजुरी. तो सबसे पहले जो सेंट्रल वेन के पास होगा वो जोन नंबर 3 होगा, क्योंकि हम बाहर से अंदर जा रहे हैं. तो सबसे पहली स्टेप 1 होगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड. ओके, और जो भी सबसे बाहर से अंदर जा रहे हैं मतलब जोन 1 जो होता है वो हाईली ऑक्सीजनेटेड होगा, इसीलिए इट इज़ मोर अफेक्टेड बाय टॉक्सिन्स. एंड जैसे बाहर से अंदर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वैसे वैसे टॉक्सिसिटी भी कम हो रही है. हिस्टोलॉजी डायग्राम है. यू कैन अप्रिशिएट दिस लार्ज सर्कुलर दिस थिंग विच इज़ एम्प्टी वेसल. सेंट्रल वेन है, ये सेंट्रल वेन है मतलब आजू बाजू में 6 पोर्टल ट्रायड होंगे बिकॉज इट इज़ हेक्सागोनल. सो इसके 6 साइड्स होंगे, साइड 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये 6 पोर्टल ट्रायड्स, 6 स्मॉल गोल गोल दिख रहे हैं ना, एम्प्टी. ओके, सो दीज आर पोर्टल ट्रायड्स. उसके बाद जोन्स देखने हैं. सबसे बाहर वाला जोन क्या होगा, जोन 1, देन सेकेंड जोन, एंड सबसे करीब जो है सेंट्रल वेन के वो जोन नंबर 3 होगा. याद रखना सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होता है जोन 1 और सबसे कम ऑक्सीजनेटेड होता है जोन 3. ओके, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन होता है, फिर जोन 1 ही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, एंड जोन 3 सबसे कम अफेक्ट होता है, एंड जोन 1 ज़्यादा अफेक्ट होता है टॉक्सिन से. जो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड है वो ज़्यादा टॉक्सिन्स की वजह से अफेक्टेड हो जाता है. ओके, अवर स्मॉल introduction of hepatic system. So thanks for watching. I hope you will like it. So please subscribe my channel and share with your friends. Thank you.